everyone, welcome back to my channel. I am Anuja, your math teacher. In our last lesson, we have done lesson natural numbers. Properties and definition have been covered in that lesson. अगर आपने वो नहीं देखा है, then you can watch again on my channel. Yes? In today's lesson, we will do some questions based on rational numbers. But before starting, I want you to please like and subscribe my channel so that you are always updated of when I post new session. So let's start with the first question. Yes, our first question is simplify 3 upon 8 plus 7 upon 2 plus minus 3 by 5 plus 9 by 8 plus minus 3 by 2 plus 6 by 5. What we have to do in these types of questions? First we have to arrange them. कॉमन डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम साथ ले आएंगे. तो रीअरेंज एंड ग्रुपिंग द नंबर्स इन पेयर. पेयर में नंबर लिखेंगे 3 अपॉन 8 एंड 9 अपॉन 8 एक साथ आ जाएगा. देन 7 अपॉन 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 एंड minus 3 by 5 and 6 by 5 we will put together in such a way that each group contains a pair of rational numbers with equal denomination. We have 3 by 8 plus 9 by 8 together, plus का sign, then 7 by 2 plus minus 3 by 2, then plus minus 3 by 5 plus 6 by 5. First we will solve one by one bracket. First bracket is common denominator है, then 3 plus 9 add हो जाएगा. Again 2 is the common here, 7 plus minus 3 and here 5 is LCM. Then minus 3 plus 6. Solve it. 3 plus 9, 12 by 8 plus 7 plus minus 3. Plus minus minus होता है. 7 minus 3 is 4 upon 2. Then plus, solve this, minus का 3 and plus 6. What will come? 3. 3 upon 5. Then 12 upon 8, we can simplify it, or in simplest form we can say, cut it by 2. Cut it by 4. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Plus 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 आ गया. Plus 3 upon 5. Now what to do? We can take LCM and 2 and 5, that is 10. Then solve it. 2 5s are 10, 5 3s are 15. Plus नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे. 1 10s are 10, 10 2s are 20. Plus 5 2s are 10, 2 से multiply करेंगे 3 को. Then 2 3s are 6. It will become 41 upon 10. We can write in mixed form also. The answer is 41 upon 10. Our next question is this. Represent 5 upon 3 and minus 5 upon 3 on the number line. अब how to represent a number line? First, what is a number line? This is the number line. Number line में हमारा सबसे center point होता है O. We can think कि ये 0 है. Then right side हमारे positive integers या positive numbers आते हैं and left side हमारे negative numbers आते हैं. So what we have written in step 1, what will we do? In order to represent 5 by 3 and minus 5 by 3 on the number line, we draw a number line and mark a point O on it to represent 0. ये point O है, ये 0 को represent करता है. अब we can write 5 upon 3 और minus 5 upon 3 as 1 2 by 3. Mixed form में लिख सकते हैं 5 upon 3 को. 3 1s are 3 and 2 5. So इससे हमें पता चल जाएगा कि जो 1 है वो तो complete whole number है and 2 by 3 इसका मतलब जो 1 2 by 3 है वो कहाँ आएगा? 2 और 1 के बीच में होगा. मतलब 1 से तो ज़्यादा है पर 3 से 2 से कम है. So since 1 2 by 3 and minus 2 1 2 by 3 lie between 1 and 2 and minus 1 and minus 2. मतलब माइनस वाला टर्म इन दोनों के बीच में कहीं होगा एंड पॉजिटिव टर्म 1 और 2 के बीच में कहीं होगा. मतलब 1 से तो ज़्यादा है पर 2 से कम है. अब आगे देखते हैं. Therefore, mark the points A and B on left and C and D on the right side of O, such that A, B, C, D represents minus 2, minus 1, 1 and 2. Or what will we do in step 3? In step 3, we can see denominator of a rational number is 3. Denominator 3 है, इसका मतलब ये 3 parts में divide होगा and the upper number is 2. तो हम चेक करेंगे 1 से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 2 एंड 3 और ऊपर वाला नंबर 2 है तो ये कहीं ऐसे होगा 1 के बाद 2 अपॉन 3. ऐसे सिमिलरली इधर आ जाइए 1 के बाद 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. क्यू वाला जो पॉइंट मिला वो हमें मिला 1 2 by 3.
क्योंकि डेसिमल 1 के बाद वाला नंबर आ गया। तो दैट इज सिंस द न्यूमरेटर इज 2 देयरफॉर मार्क सेकंड पॉइंट ऑन द पार्ट्स। सो P and Q आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमें चाहिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 रेशनल नंबर्स lying between 1/3 and 1/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा आता है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स या 2 रेशनल नंबर्स। तो अगर हमें सिंपल एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर, दो नंबर जो हमें गिवन है उन दोनों को ऐड कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, या ऐड एंड डिवाइड बाय 2, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दिस टर्म वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाला निकालेंगे हम 1/3 प्लस 1/2 एंड हाफ ऑफ दिस। तो 1/2 इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2। सॉल्व कीजिए, 3 and 2 का एलसीएम 6 आ गया, 3 2 6, 2 1 2 प्लस 2 3 6, 3 2 प्लस 3 इज 5/6। तो 5/6 का जो हाफ होगा दैट इज द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सिमिलरली द सेकेंड वन रेशनल नंबर बिटवीन, अब किसका निकालेंगे, जो हमें मिला है 5/12 मिल गया है, तो इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का 1/3 एंड 5/12 के बीच का निकालेंगे। सेम हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स 1/3 प्लस 5/12, देन हाफ ऑफ एलसीएम लेंगे, 3 12 का 12 आएगा, 3 4 12, 4 ऊपर प्लस 12 1 12, 5 4 प्लस 5 9/12। इनका हाफ करिए, दैट इज 9/24, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 1 9, 2 12 24। वी कैन सिंप्लीफाई इट, 3 3 9, 3 8 24, 3/8, which implies that 1/3 is less than 3/8 is less than 5/12 is less than 1/2. So then we got two rational numbers between 1/3 and 1/2, but we have to find 3 numbers here. So what to do next? Again we can use now these two numbers 5/12 and 1/2. So similarly half of 5/12 plus 1/2, take LCM, add it and find the half of this number 11/24. This is the third rational number between this. तो तीनों rational number हमें मिल गए। This is the method. Next is write the additive inverse of the following. The question is 5/-11. अब additive inverse क्या होता है? We have already read in the properties कि an additive inverse of a number is a number such that the sum of given number and additive inverse is 0. किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिसे प्लस करने के बाद आंसर 0 आए। तो अब 5/-11 में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हमें 0 मिल जाए? 5/-11 को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, -5/11। -5/11 में हम क्या प्लस करें कि 0 आ जाए? ऑब्वियस है, प्लस 5/11 अगर प्लस करते हैं तो वी विल गेट 0 हियर। ये सॉल्यूशन हो रखा है यहाँ, -5/11 प्लस 5/11, 11 इज द रिमाइंडर, -5 प्लस 5 इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0 ओनली। So therefore the additive inverse of 5/-11 is 5/11. The question number next in this series -11/-14 का additive inverse। अच्छा, -11/-14 को हम लिख सकते हैं 11/14, चाहे आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी पता है हमें। सो इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी, उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, 11/14 का ऑपोजिट हो गया -11/14, दोनों को प्लस करिए, आंसर 0 आएगा। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट वी विल यूज हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू रिमेंबर कि नंबर्स को आगे पीछे लिखना है। अगर a इंटू बी है तो उसको b इंटू ए लिख सकते हैं, a प्लस बी है तो उसको b प्लस ए लिख सकते हैं। तो सो हाउ विल बी राइट? फर्स्ट दिस कैन बी रिटर्न एज -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट हियर लास्ट टर्म -3/5 इंटू 1/6, और ये जो बीच वाली 5/2 है उसको मैं लास्ट में ले जा रही हूँ। सो नाउ व्हाट टू डू? अब यहाँ देखिए a इंटू बी माइनस बी इंटू ए सी है एक तरह से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम एक टर्म जो कॉमन वाली है वो बाहर ले लेते हैं। तो -3/5 हमने बाहर ले लिया, देन 2/3 प्लस 1/6 अंदर आ गया, देन प्लस 5/2, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। देन -3/5, 3 और 6 हमारा एलसीएम हो गया 6, देन 3 2 6, 2 2 4 प्लस 6, 4 प्लस 1 इज 5/6। ये वाली टर्म लास्ट वाली अभी हमें नहीं छेड़नी है, वी हैव टू कॉपी लाइक दिस ओनली। देन -3/5,
5/6 प्लस 5/2. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए. 5 6 are 30 and multiply, otherwise we can cut it. 5 1s are 5 and 3 1s are 3 and 3 2s are 6. तो माइनस का 1/2 बचेगा प्लस 5/2. नाउ 2 LCM -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 - 1 4, 4/2. Then 2 is the answer after simplification. Next question. Write the multiplicative inverse of -13/19. As we have done additive inverse, now it's a multiplicative inverse. अब सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का वो होता है जिससे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर 1 मिले. ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. We know that multiplicative inverse of a number is a number such that the product of given number and multiplicative inverse is 1. Hence, we will multiply what to do? अब -13/19 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल गेट 1. ऑब्वियस उसके रेसिप्रोकल से. तो 19/-13 से अगर हम करते हैं तो 19/-13 टू -13/19 वी विल गेट 1 हियर. चेक कर लीजिए. -13 से -13 कैंसिल आउट हो गया. 19 1 19 1 हो गया. तो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज 19/-13, या फिर माइनस बीच में लिख लेंगे, डजंट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number 34 is divided into two parts such that 4/7 of the first part is equal to 2/5 of the second part. Find the two parts. अब पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. We are having a total 34, एक टोटल नंबर है 34, उसके दो पार्ट्स हैं and 4/7 of the first part is equal to the 2/5 of the second part. तो हम मान लेते हैं लेट वन पार्ट बी ए. एक पार्ट हमारा ए है तो दूसरा कितना होगा? 34 माइनस ए. सिंपल है, लीनियर इक्वेशन लगा रहे हैं. नाउ इट इज गिवन दैट, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में? 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट. तो 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट हमने लिया है ए, दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज 34 माइनस ए. तो विच इम्प्लाइज दैट 4/7 of means multiplication, multiply into a is equals to 2/5 into 34 minus a. Now 4 into a is 4a/7 is equals to 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 minus a/5. अब what to do? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे एज लीनियर इक्वेशन में. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. देन 4a into 5 is 20a is equals to 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा. 7 2s are 14 in bracket 34 minus a. 20a is equals to 14 multiply 34 minus 14 into a 14a. 14 into 34 होता है 476. 20a, अब 14a जो यहाँ माइनस में है वो लेफ्ट साइड प्लस में आ जाएगा. 14a is equals to 476. अब 20 प्लस 14 हो गया 34a is equals to 476. Now a will be equals to 476 divided by 34. यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा. अब 34 से आप डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 14. सो द अब फर्स्ट नंबर हमारा ए तो आ गया 14. अब सेकंड नंबर कितना होगा? 34 माइनस 14 जो कि हो गया 20. तो दो नंबर हमारे हो गए 14 एंड 20. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर पंप pumps out 6 liters of water per minute. एक मिनट में इतना वाटर पंप करता है वो. एक वाटर पंप इतना पंप्स आउट करता है वाटर 1 मिनट में फ्रॉम अ रिजर्वॉयर. How many liters of water will be pumped out in 1/5 of an hour? अब इतने आवर्स में वो कितना पानी निकाल वो करेगा, पंप आउट करेगा. सो अब सॉल्यूशन में देखेंगे. सबसे पहले तो हमें ये देखिए दे रखा है पर मिनट का गिवन है इतना लीटर, तो आपको आर में निकालना है. फर्स्ट वी विल चेंज आर इनटू मिनट. पहला काम हम ये करेंगे. 1/5 आर है, इसको कन्वर्ट करिए. 5 1 5 + 1 6/5 आर. अब आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में. देन 6/50 इंटू 65 से कट आउट हो जाएगा 12 बार. 12 6 72 मिनट्स. देन इन 1 मिनट द वाटर विच इज पम्प्ड, हाउ मच, कितना पानी है? 14 1/6 लीटर. सॉल्व कीजिए. 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84 + 1 85/6 लीटर. देन सो इन 72 मिनट्स वाटर विच इज पम्प्ड. अब 72 मिनट्स में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड पढ़ा है हमने. तो 85/6 इंटू 72 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करिए, 6 से कट जाएगा ये 12 बार. 12 इंटू 85 आएगा 1020 लीटर. तो इतना पानी पंप आउट होगा 72 मिनट्स में या फिर 1/5 आवर में. सिंप्लीफाई. 1/3 - 1/2
2 माइनस 1/7। डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, सिंपल। व्हाट टू डू, अब हमें सिर्फ सबसे पहले हमें नीचे वाला जो डिवाइड के 1/3 माइनस 1 जो ये टर्म है इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। 2 माइनस 1/7 मेथड वही है, एलसीएम लेंगे, 7 1 ज़ा 7, अब यहाँ हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 माइनस 1/7 मतलब 40 माइनस 1/7, ये हो जाएगा 13/7। तब तक हमें कोई भी नंबर नहीं छेड़ना है, पहले हमें सिर्फ ये स्टेप पूरा कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, जब हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 1/13 और उसके अपॉन नीचे कोई नंबर होता है तो वो ऊपर आ जाता है, कि फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा 5th 6th में। देन 1/3 माइनस, अभी हो जाएगा 7/13। अब हमें फिर से वही करना है कि सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ऊपर का 1 नहीं छेड़ेंगे। देन 1 अपॉन, अब एलसीएम लीजिए, नीचे 1 लगा दो 3 के, 13 13 3 ज़ा 39 माइनस 7, 13 इंटू 3 हो गया हमारा 39 माइनस 7/13। अब 39 माइनस 7 होता है 32/13, ये वापस से वही होगा, जो 13 नीचे है ये चला जाएगा ऊपर 1 की जगह, 1 इंटू 13 13/32। दिस इज द आंसर। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई टर्म तब तक नहीं छेड़ेंगे। पहले आपने सबसे पहले ये वाला नीचे वाला सॉल्व करना है, अपॉन वाला, फिर नेक्स्ट नंबर सॉल्व करना है, लास्ट में हमें फिर 1 से वो माइनस करना है 1/। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 times the reciprocal of a rational number equals 6 times the reciprocal of 17. तो फाइंड द रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर नहीं पता है, वी डोंट नो द रेशनल नंबर, तो लेट द रेशनल नंबर बी ए मान लिया हमने कोई नंबर। अब व्हाट टू डू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, जो ऊपर लिखा है नंबर न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ ए के नीचे कुछ नहीं है, वी कैन से ए 1 होगा, तो 1/a इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो रेशनल नंबर का पहला हमें मिल गया है, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर 1/a। तो सो एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 9 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, 9 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 17। 17 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/17। तो अब सॉल्व कीजिए, 9 1 9/a इज इक्वल्स टू 6 1 6/17। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, 9 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 6 इंटू a, तो 6a इज इक्वल्स टू 17 इंटू 9। अब a हो जाएगा 9 इंटू 17, 6 आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट कर लीजिए इसे 3 से, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 17 3 ज़ा 51, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप डिवाइड कर सकते हो। मिक्स फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 25 1/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन द क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमेशा सबसे पहले फर्स्ट रीड आउट केयरफुली कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें आधी चीज़ तो क्वेश्चन बता ही रहा है, कि जो क्वेश्चन हमें दे रहा है उसको पहले यूज करना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। So that's it for today. I'll be back soon with new topics very soon. Okay, चलिए, take care, bye bye.